Hello everyone, hope you all are doing well. My name is Divya Bhardwaj and this is the first video that I'm going to post on YouTube. I really hope that you guys like this video. So let's begin. So this video, as you can tell by the title also, it's about a little bit of my intro and also mini IKEA haul. I'll show you the things that I've bought from IKEA, which also includes these three pictures by the way. So I've not pictures but the frames that I've bought from IKEA and how I where from where I got this picture and how I've kept them. So I'll also show you guys in the last part of this video because that part can be a bit long. So first of all, I'll start with my intro. So I live in Mumbai and I work here as a data analyst. And I love to watch those mini haul home decor kind of video. Actually, my room is also a little bit tiny, so I really like to decorate it, but also keep a little bit of minimal. That's why I wanted to open a YouTube channel as well, that where I can show you guys these kind of things. So that's it about me. I don't want to blabber too much about myself only. So I'll just keep it short and I'll quickly move to the haul. So let's begin with the haul. And the first item that I have bought from this haul is this mini picture frame. I really love this, and this is only for 199 rupees. I really love this. It's so tiny, not so tiny, but it's the perfect size. And I have kept it on my office desk. I also like post a picture of that as well. Um, so I really like it. It has a like small details on it, like you can see looks really beautiful, and it's just for 199. So I think for that price it's a great thing you can get for yourself if you are looking for a small picture frame. So that's it about this picture frame. The next item that I have brought is a monitor desk that you can see just right to the picture frame. So I really like this monitor desk because I can keep my two laptops, my keyboard, my mouse, my purse, even a small diary, and so much more things like earphone. There's so many things that I can keep just in this much space, so it saves me a lot of space and looks so clean and chic. That's why I really wanted to get it. I actually initially wanted it in a white color. I'm actually, by the way, obsessed with white colors, so I really wanted it in white, but I waited for 1 month and it didn't came back in stock. That's why I had to get this black one for myself. And now when I look at the black one, I think I did make the right decision because my table is white, and if the monitor desk was also white, it wouldn't have looking nice. So that's why I went for the black one, and I really love this. The drawer is of wood and the upper part is of metal, and it looks so clean and so minimal. That's why I love it. So that was the second item. Now we will move to the third item that I bought from IKEA. It's a bedside table. So I wanted a bedside table from a long time, and initially I had a big bed, so I could not keep that. But now I went for a smaller bed, which is perfect for me. I don't need. I It's only me who sleeps on this bed, so it's perfect. So now I can keep a bedside table. So I bought this one, and it's also in white color. So so I love it. And when I wanted to buy a bedside table, I was looking for something that has the for the top shelf. I can just decorate it with some flower pots or something like that. And on the bottom shelf, I wanted it to be open so that I can just grab my skincare products or makeup, little bit of makeup products, anything I like. So I just wanted the second shelf to be open as well. I didn't want any drawer in that, but I wanted a third shelf where I can just keep my items in a cluttered way, my hair dryer and all sort of things. And this bedside table had all those qualities, and it also looked really nice. It has glass detailing to the drawers, so that also looks really beautiful. And this is overall a woody texture. This is overall made up of wood. I have actually assembled this bedside table by myself, and I really enjoy doing it because I like to do DIY stuffs. So that was it about the bedside table. The next item is a mirror. Now, I love mirror. I love them so much. I love big mirrors,
and my room is actually small, as I said earlier also. So I didn't wanted the mirror frames to be like so dramatic, because I think कि सारा जो ध्यान है वो मिरर के फ्रेम पे चला जाएगा, एंड मुझे लगा कि थोड़ा लाइक मेरे रूम को स्मॉल बना सकता है या थोड़ा डार्क ऐसा कुछ दे सकता है। तो मुझे ये मिरर अच्छा लगा, एंड देयर वाज अदर मिरर ऑल्सो जिसका ब्लैक फ्रेम था। बट इसमें मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, कि एक तो ये कि ये ज़्यादा वाइट था उस वाले मिरर से, एंड दूसरी चीज़ ये थी कि इसका प्राइस पॉइंट, दिस इज़ ओनली फॉर 1500। आई थिंक आई मेंशन द प्राइस ऑफ दिस एज वेल। बाय द वे मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डाल दूँगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन ऑल्सो गेट इट फॉर योर सेल्फ एज वेल। सो इसीलिए मैंने ये मिरर लिया खुद के लिए, एंड क्योंकि इसका बॉर्डर नहीं है, सो ये काफ़ी मिनिमल लगता है रूम में, काफ़ी क्लीन लगता है, ऐसा नहीं लगता कि इसने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बॉर्डर्स होते तो थोड़ा छोटा लगता है ऐसा, इट्स माय ओपिनियन। सो इसलिए मैंने ये वाला लिया, एंड ऑल्सो ये काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा था, दूसरा वाला 3500 का था। सो इसलिए मैंने ये लिया 100, एंड तो मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी एंड लुक के हिसाब से भी ये परफेक्ट लगा। द ओनली ड्रॉबैक इज़, क्योंकि इसके पीछे कोई फ्रेमिंग कुछ पीछे ऐसा है नहीं जिसकी वजह से मैं फिर जैसे प्रेशर नहीं डाल सकती, या फिर ज़्यादा फ्रेजाइल है टू ब्रेक। ऑब्वियसली सारे ग्लासेस होते हैं, सारे मिरर्स होते हैं, बट इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, टूट सकता है, तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। बट मुझे एक प्लस पॉइंट ये लगा कि आगे फ्यूचर में, मैंने जैसे पिंटरेस्ट पे भी देखा है कि लोग DIY करके खुद से फ्रेम लगाते हैं, तो मैंने सोचा अगर अगर मैं चाहूँ आगे तो मैं खुद से भी ऐसे इसमें फ्रेम लगा के इसको आगे फर्दर डेकोरेट कर सकती हूँ। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो दैट्स वाई मैंने इसको लिया, एंड लुक सो नाइस नेक्स्ट टू द टेबल एंड नेक्स्ट टू माई रूम, sorry, next to my bed. So the fifth and the last item that I have brought from IKEA are these three picture frames, and I really love the look of it. Actually मैंने ऐसा similar Pinterest पे देखा था, like 3 pictures का, even 6 pictures and whatever you like, and मुझे भी अपने रूम में ऐसा कुछ रखना था ये सोफ़े के पास में। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे थोड़ा ऐसा पिंक ऑरेंज थीम में कुछ चाहिए था। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फ्रेम्स, एंड मुझे ये फ्रेम ऑलमोस्ट इसी रेशियो में कुछ चाहिए था, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ गोल्डन फ्रेम, बट ये गोल्डन नहीं था, ये ब्राउन था, बट फिर भी मुझे इस प्राइस में इससे अच्छा ऑप्शन, मैंने अमेज़ोन पे भी चेक करा, बहुत जगह चेक करा, बट मुझे ये बेस्ट लगा ऑप्शन, एंड इसलिए मैंने इसको लिया। एंड इसमें जो ये फ्रेम है, इट्स नॉट एक्चुअली वुड, ये कार्डबोर्ड है, बट अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा कुछ चीप नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फट जाएगा, ऐसा कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो इसलिए मुझे फ्रेम बहुत अच्छा लगा, एंड इसमें एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी, अभी तो लाइक कोई बॉर्डर्स नहीं है, बट इसमें ऑप्शन है, आप चाहें तो एक पतले बॉर्डर का भी ऑप्शन है, एक चौड़े बॉर्डर का भी ऑप्शन है, मैंने उनको भी पीछे रखा हुआ है। सो अगर मुझे ऐसा कभी फ्यूचर में दूसरा मैं पिक्चर चेंज करती हूँ उसका बॉर्डर से, मुझे जिस अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर पाऊँगी। सो मुझे ये भी एक प्लस पॉइंट लगा इस फ्रेम में। So that was it about the frame. Now I'll talk about the pictures. So the middle one, I actually saw it on Pinterest, and the moment I saw it, I really wanted it. ये भी बहुत सुंदर लग रहा था. I wanted something pink and orange, and इसमें है थोड़ा orange का भी shade है. So I really love this one, but ये actually Etsy पे था, and मैंने Etsy से कभी shop नहीं किया है. सो Etsy से मुझे लेने में थोड़ा डाउट हो रहा था कि पता नहीं लेना चाहिए या नहीं, बट इट वॉज़ फॉर आई थिंक 200 और 300 समथिंग, एंड मुझे सिर्फ इस प्राइस में बस इसका PDF फॉर्म ही मिल रहा था, तो वो भी बात थी। सो मुझे लग रहा था पता नहीं इतना प्राइस पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड वर्थ इट होगा या नहीं होगा। बट फिर भी क्योंकि मेरे को पिक्चर कहीं पे नहीं मिला, मैंने बहुत चैट GPT से और पता नहीं कहाँ कहाँ से इमेज जनरेट करने की कोशिश करी, ऐसा सिमिलर पिक्चर खुद से बनाने की कोशिश करी कैनवा पे, बट बना ही नहीं, तो मुझे लास्ट में ख़रीदना पड़ा Etsy से। कोई स्कैम नहीं हुआ मेरे साथ, सो आई वॉज हैप्पी अबाउट इट, एंड पिक्चर बहुत बहुत सुंदर प्रिंट होके आया। एंड लास्टली मुझे इस पिक्चर को Etsy से ही लेना पड़ा, बट PDF फॉर्म में, मतलब वो रेशियो देते हैं कि आप किस रेशियो में उसको प्रिंट कराना चाहो, डिफरेंट रेशियोज़ में अवेलेबल था। मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी बाय द वे, अगर आपको चाहिए हो तो। सो दैट्स हाउ आई गॉट दिस पिक्चर, एंड आई टॉक अबाउट द अदर वन विच इज़ द हार्ट वन। ये एक्चुअली ये भी मैंने Etsy पे ही देखा था, बट इसमें मेरे को ये लगा कि मैं इसको खुद ही जनरेट कर सकती हूँ, तो मैंने इसको कैनवा की हेल्प से इसे ये हार्ट, मैंने कैनवा पे गई एंड मैंने 3 हार्ट आउटलाइन शेप्स सर्च किए, एंड मैं चैट GPT की हेल्प से मैंने इसका जो बटरफ्लाई का कलर है उसमें से 2-3 शेड्स उठा के
एंड सेम कलर मैंने कैनवा पे डाल दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ पिंक चाहती थी। सेम अबाउट दिस पिक्चर, मैं सिमिलर पिंक चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी दोनों का पिंक अलग हो जाए। तो मैंने 2-3 कलर्स चूज़ करे एंड 3 हार्ट आउटलाइन की शेप चूज़ करे एंड उसको ऐसे रैंडमली एडजस्ट कर दिया एंड आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। एंड द थर्ड वन इज़ दिस वन, this says the obstacle is the way. Now I have actually read this quote somewhere in my office on a book, and the moment I saw it I really connected with this line, and I think the year 2024 was about this line for me, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया 2024 में, काफ़ी नई चीज़ें हुई मेरे साथ, बट आई ऑल्सो हैड टू पुट हार्ड वर्क फॉर इट। सो मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि जितना आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जितना हर्डल्स आते हैं, उतना आप उस चीज़ से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स वाई आई लव्ड इट कि द ऑब्स्टिकल इज़ द वे। So when I was thinking about the third picture, so I thought why not get this line for myself. So but I think मैं इसका font थोड़ा better कर सकती थी, but anyways I can just change it whenever I want to. That's what I love about this picturing thing. Now मैंने इसको print जो है वो एक स्टूडियो से कराया जहाँ से हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, वहाँ से प्रिंट करवाया। बट एक्चुअली मैं अब सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे नॉर्मल पेपर पे ही प्रिंट कराना चाहिए था, कलर प्रिंट पे, बिकॉज अभी जो ग्लास है वो एक्चुअली खुद ही शाइन कर रहा है एंड अंदर का पेपर भी शाइनी है। जो नॉर्मल फ़ोटो जैसे प्रिंट कराते हैं जैसे पेपर पे वैसा पेपर है, तो वो भी शाइनी सरफेस है। सो आई थिंक वो इतना अच्छा नहीं लगता। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि लाइट की वजह से पिंक वाला कैसे फोल्ड्स दिख रहे हैं, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। एंड वो मुझे काफ़ी कॉस्ट भी करा, जितना तीनों पिक्चर का फ्रेम कॉस्ट हुआ है मिला के, उतना मेरे को कॉस्ट आया है इसका। एंड आई वॉज लिटिल बिट वरिड कि इसका प्रिंट कैसा आएगा। आई वॉज वरिड कि कलर में भी वो फ़ोन में या कंप्यूटर पे देखने में अच्छा लग रहा है, बट रियल में भी इतना नाइस ना लगे। बट एक्चुअली बहुत सुंदर लगा एंड जैसा मेरे को फ़ोन में दिख रहा था, स्क्रीन पे दिख रहा था, वैसा ही कलर आया। सो मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी बताना आपको कैसा लग रहा है। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड आई रियली होप दैट यू गाइज enjoyed दिस वीडियो। एंड आई वांट टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लेट मी नो कि पूरे हॉल में से आपका फेवरेट आइटम कौन सा था एंड इसमें से कौन सी चीज़ अपने घर में पक्का इनकॉपरेट करना चाहेंगे। एंड ऑल्सो कमेंट्स में मुझे आप अगर चाहें, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, सो इफ़ यू गाइज हैव एनी एडवाइस or anything just you want to tell me, please let me know. And if you like my video, please like to my channel. And if you like my style, I also have some more contents in my mind that I want to post in the future video, so I'll keep posting, I hope. And I hope you guys will like that. So if you like my style, please subscribe to this channel also and please support me. Thank you guys, thank you so much for watching this video, and I really hope that I'll see all of you guys in my next video as well. Thank you so much for watching. Bye.